Children, today we study the class 9th English Beehive. The story is Shehnai of Bismillah Khan, which is the second story of the part of the sound of music. Part 2 story Shehnai of Bismillah Khan. First we will study the paragraph, thereafter we will know the Hindi meaning. This story is especially about Bismillah Khan, who is the known king of Shehnai. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeds noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds are produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first stayed in the Shah's chamber and was played by Nai barber, so the instrument was named as Shehnai. Shehnai. सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शाही निवास में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसकी आवाज़ बड़े ही कर्कश थी, अच्छी नहीं थी। बांस से निर्मित आवाज़ करने वाले सभी यंत्रों को पुंगी नाम दे दिया। कुछ लोगों ने सोचा था कि वाद्य यंत्र एक दिन पुनर्जीवित किया जाएगा। व्यावसायिक म्यूजिशियंस के परिवार से संबंध रखने वाला एक नाई, जिसकी शाही निवास तक पहुंच थी, ने पुंगी की आवाज़ के गुण में सुधार करने का निर्णय लिया। उसने एक प्राकृतिक खोखले तने वाले पाइप को चुना जो पुंगी से लंबी चौड़ी थी तथा इस पाइप पर 7 सुराख बनाए। जब उसने इसमें से कुछ सुराखों को बंद करने तथा खोलते हुए उसे बजाया तो बहुत ही मधुर और सुरीली आवाज़ निकली। उसने इस यंत्र को शाही दरबार में बजाया और उसे सुनकर सभी प्रभावित हो गए। इस यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि इसे एक नया नाम देना पड़ा, जैसे कहानी सुनने को मिलती है, क्योंकि यह शाह के कक्ष में पहली बार बजाया गया और नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। सेकंड पैरा, द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ऐसा कहा जाता है कि शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा और इसी कारण इसे मंदिरों में भी बजाया जाता है और यह उत्तर भारतीय समाज में विवाह के उपलक्ष्य पर इसे बजाया जाता है। प्राचीन काल में शहनाई नौबत अथवा शाही दरबार में 9 यंत्रों के पारंपरिक समूहों का एक भाग था। अभी तक इसका प्रयोग मंदिरों व विवाह में किया जाता है। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिलवाने का संपूर्ण श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, as a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award
इन इंडिया द भारत रत्न। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां बिहार की प्राचीन रियासत डुमरांव गांव के एक सरोवर के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे नियमित रूप से पास के एक मंदिर, जिसे बिहारी मंदिर कहते हैं, भोजपुरी भाषा में चैता गाने के लिए जाते थे, जिसकी समाप्ति पर उसे 1.25 किलो लड्डू दिया जाता था और इस इनाम के बतौर वह बहुत खुश होते थे। ऐसा 80 वर्ष पूर्व हुआ और इस नन्हे बालक ने आगे चलकर भारत रत्न प्राप्त करने का लंबा सफर तय किया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasool Bakhsh Khan, was the Shahnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father, Paigambar Bakhsh, and other paternal ancestors were also great Shahnai players. 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह बिहार के एक जाने माने संगीतज्ञ परिवार से संबंधित हैं। उनके दादा रसूल बख्श भोजपुरी राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज लोग भी शहनाई वादक रहे थे। द यंग बॉय took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shahnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bakhsh to the Vishnu temple of Banaras, where Bakhsh was employed to play the Shahnai. Ali Bakhsh would play the Shahnai and Bismillah would sit captivative for hours on end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. The following waters of the Ganga inspired him to improve and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shahnai. अब ये बालक ने अपने जीवन में संगीत को चुन लिया। 3 वर्ष की आयु में जब उसकी माँ उसे उसके मामा जी के घर बनारस ले आई, बिस्मिल्लाह अपने मामा जी द्वारा रियाज प्रैक्टिस करते देखकर शहनाई पर आकर्षित हो गए। जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, जहां पर अली बख्श को शहनाई बजाने के कार्य में लगाया गया। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे तथा बिस्मिल्लाह खां उनके साथ आखिर तक शहनाई पर आकर्षित हुआ बैठा रहता था। धीरे धीरे उसने भी इस यंत्र को बजाने की तालीम लेनी आरंभ कर दी और बैठकर सारे दिन अभ्यास करते रहते। आगामी वर्षों में बालाजी का मंदिर और मंगला मैया और गंगा के तट के सीखने के प्रिय स्थान बन गए, जहां वह एकांत में बैठकर अभ्यास करता था। गंगा जी के प्रवाहित जल ने उसे बिना तैयारी के गीत रचने व रागों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पहचान शहनाई से पृथक समझा जाता था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of the recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938, came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shahnai player on radio. 14 साल की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद संगीत कॉन्फ्रेंस में गए। गायन समारोह के अंत में उस्ताद फयाज खान ने युवा बालक की पीठ थपथपाई और कहा, कठिन मेहनत करो, तुम इससे अच्छा कर सकते हो। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने के साथ ही बिस्मिल्लाह खां को एक बहुत बड़ा मौका मिला।
वो शीघ्र ही रेडियो पर शहनाई वादक के रूप में प्रायः सुने जाने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shahnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust and Destiny speech. भारत को जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्ला खां राष्ट्र का शहनाई द्वारा अभिवादन करने वाले प्रथम भारतीय बने। इन्होंने लाल किला से राग कफ़ी में श्रोताओं को अपना दिल उड़ेल दिया, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया। बिस्मिल्ला खान was given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted his priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's play at a festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Shehnai. The film was a hit and of one of Bismillah Khan's composition, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be nationwide chart booster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited in two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sandhi Apana. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों में अनेक यादगार प्रदर्शन प्रस्तुत किए हैं। उनका पहला विदेशी दौरा अफ़गानिस्तान का था, जहां राजा ज़हीर शाह इस शहनाई वादक पर इस तरह मोहित हो गए थे कि उन्होंने अनमोल पर्शियन गलीचा शानदार उपहार भेंट किए। बिस्मिल्लाह खां के संगीत से केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही मोहित नहीं हुए, बल्कि फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खां को एक पर्व पर वाद्य बजाते देखा इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम गुंज उठी शहनाई इसके बाद यंत्र पर नाम रख दिया, जो कि फिल्म हिट हुई। बिस्मिल्लाह खां की एक संगीत रचना दिल का खिलौना हाई टूट गया एक राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाले सिद्ध हुई। फिल्म जगत में इस विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां के संगीत में साहसिक कार्य केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित था, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनाधि अपना। वे जोर डालकर कहते हैं, मैं फिल्म जगत के बनावटीपन और चौंध में बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूँ। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar मौसिकल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खां को बहुत से नाम मिले, उनकी पहचान बहुत जल्दी बढ़ने लगी। बिस्मिल्लाह खां फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में म्यूज़िक प्रोग्राम प्रदर्शित किया और उन्हें वहां आमंत्रित किया गया। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में कैन्स आर्ट फेस्टिवल पर भी ओसाका व्यापार मेले में हिस्सा लिया। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने विख्यात हो गए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर ताहर मैजिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्म्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award,
Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." सन 2001 की बात है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस बहुत दिनों से प्रतीक्षित इनाम को अपने सीने में रखे हुए आँखों से आंसू की अद्भुत चमक के साथ उन्होंने कहा था, मैं यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए। यही हिंदुस्तान की सर्वाधिक धनी परंपरा है। अब तो पश्चिमी लोग भी हमारा संगीत सुनने को आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate an atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique mutt of Dumrao. आखिर दुनिया की यात्रा करने के बाद उन्हें प्यार से खान साहब पुकारा जाने लगा। वे बनारस और डुमरांव के सर्वाधिक शौकीन रहे हैं। डुमरांव और बनारस के करीबी रहे हैं, क्योंकि वे दुनिया के सर्वाधिक अद्भुत नगर रहे हैं। एक बार उनका किसी एक विद्यार्थी ने उनके सामने अमेरिका में शहनाई विद्यालय का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव रखा था, और उस विद्यार्थी ने बनारस जैसे मंदिरों का निर्माण करने, वहाँ का वातावरण बनारस में बनाने का वायदा किया। परंतु खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या गंगा नदी भी वहाँ पर ले जाने में वे सक्षम हैं। बाद में उन्हें स्मरण करते हुए कहते हैं, यही कारण है कि जब कभी मैं विदेश में जाता हूँ, मैं हिंदुस्तान को देखने की तमन्ना रखता हूँ। जब मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारसी और पवित्र गंगा के विषय में सोचता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ तो डुमरांव के अद्वितीय मठ को बहुत याद करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepted that a devout Muslim like him can very naturally play the Shahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन एक समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत का पूर्ण उदाहरण है। एक व्यक्ति जो बिना प्रयास के स्वीकार करता है कि एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी और प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाना पसंद करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of नेशनल मॉर्निंग। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का देहांत 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के बाद हो गया था। उनका राजकीय संस्कार किया गया था। भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया था। नाउ नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस।